Hello everyone. Good evening. Let us start with our first topic of ninth standard, that is basic concepts in geometry. Okay, so this topic is from maths part 2. So now it's not like 8th standard that you have the same textbook. Now your textbook has been divided into two parts, that is algebra and geometry. So here we are, the geometry is maths 2 part, and maths 2 part, the first topic is basic concepts in geometry. Okay, so all these basic things you have already done in your previous classes in geometry sections. Now let us go and understand or recall all those concepts to understand more about them. So the first topic which we are going to cover today is the coordinates of points and distance. Okay, so the first topic what we are covering is coordinates of point and its distance. Now when do we call that for a point, for a given point this particular thing is a coordinate, or for a given that point that thing is a coordinate? When can we call all these things? So here we have that the coordinates of point and distance. So the number which is associated with the point is called the coordinate of that point. Okay, understand this. The number which is associated with a point is called the coordinate of that point. For example, here on the number line, you have point A, and the number which is associated with this point A is -4. So we can say that -4 is coordinate. -4 is coordinate of A or of point A. Understood? Similarly, you can say that 2 is coordinate of point B, 6 is coordinate of point C. Understood? So hopefully this concept of coordinate is clear. So the number which is associated with the point is called coordinate of that point. Okay? Now let us go and see if we have to find distance between the 2 points. If you need to find the distance between 2 points, how you're going to find the distance between 2 points? Okay, so let us go and see. For example, let us find a distance between point A and point C. That is, we need to find a distance AC. Alright, so for that, to find distance between two given points, you just need two things. Barabar? The coordinate of each point. So if you know the coordinate of the 2 points, you can find the distance between them. And how you're going to find? So distance between any 2 point is nothing but the bigger coordinate minus the smaller coordinate. So you need to find who is the bigger coordinate, okay, and which is the smaller coordinate. So what you have to do, distance between them is nothing but bigger coordinate minus smaller coordinate. तो ये पहचानना आना चाहिए. Once you can just recognize which is the bigger coordinate, which is the smaller coordinate, तो bigger coordinate minus smaller coordinate कर दो, आपको उसका distance मिल जाएगा. For example, जैसे हमने कहा हमें distance find करना है AC, तो distance AC हमें find करना है. ठीक है, तो जाके देखते हैं A कौन है. तो A जो है वो -4 है. C कौन है? C है वो 6 है. बराबर है. अच्छा, now you tell me between -4 and 6 which is the bigger coordinate? 6 is the bigger coordinate. Am I right? So since 6 is greater than -4, therefore distance AC क्या है? फॉर्मूला क्या है? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. बिगर कोऑर्डिनेट कौन है? 6 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो माइनस का माइनस. और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है? तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -4. सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है? -4 है, तो उसका नंबर के साथ स्मॉलर कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना पड़ेगा. समझ में आया? तो योर आया 6 + 4 एंड दैट इज 10 यूनिट. समझ में आया कि नहीं आया? माइनस ऑफ -4 इज प्लस. बराबर, तो माइनस ऑफ -4 प्लस, तो 6 + 4 10 आ गया. बराबर. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. तो सपोज वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस BC. तो फॉर डिस्टेंस BC, B का कोऑर्डिनेट कौन है? 2 है. C का कोऑर्डिनेट कौन है? 6 है. अच्छा, नाउ टेल मी हु इज ग्रेटर? यस, 6 इज ग्रेटर. तो डिस्टेंस BC क्या होगा? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तो बिगर कोऑर्डिनेट कौन है? 6 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है? 2 है.
2 के पास साइन पॉजिटिव है ना, इसके लिए उसके पास माइनस नहीं लिया टाइम, ठीक है। तो 6 माइनस 2, -4 था वहाँ पर, तो 6 माइनस -4, तो आंसर क्या आ गया ये 4 यूनिट। ऑलराइट, सो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट this distance. Okay, all right, so what can you say about the coordinate of point A? So coordinate of point A is nothing but -5. What can you say about coordinate of C? Coordinate of C is -2. What can you say about coordinate of E? Coordinate of E is 3. अच्छा, suppose you need to find here, if I ask you to find distance AC, आप distance AC find करो, बराबर है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, A का कोऑर्डिनेट देखोगे तो A का कोऑर्डिनेट -5 है, C का कोऑर्डिनेट क्या है -2 है। अब बताना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बराबर है। तो वी ऑल नो डैट, बराबर, सिंस वी हैव बीन डूइंग मैथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी ऑल नो डैट जब नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव रहते हैं तो छोटा वाला जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है वो बड़ा हो जाता है, बराबर, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 से नज़दीक कौन है, हु इज़ क्लोजर टू 0, -2, तो वो बड़ा होगा, बराबर, क्योंकि जब नंबर लाइन पर हम लोग ऐसे मूव करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब हम बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बड़ा कौन है -2 और छोटा कौन है -5 है, बराबर। ये चीज़ नहीं मालूम हुआ है तो आप अभी कंफर्म ये चीज़ को फीड करके रख लो, बराबर है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर याद रखो ग्रेटर कौन है, -2 इज़ ग्रेटर। अभी उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बराबर। डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। बड़ा कोऑर्डिनेट कौन है, 2 है, -2 है, सॉरी। तो -2 माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, तो माइनस, और छोटा कोऑर्डिनेट कौन है, तो छोटा कोऑर्डिनेट है -5। ये बात भी बताना पड़ेगा। तो ये -2 और माइनस ऑफ -5, ये +5। अच्छा, -2 + 5 कितना हो गया, तो ये 3 हो गया। तो ये 3 यूनिट हो गया डिस्टेंस AC। आगे समझ में? तो डिस्टेंस AC इज 3 यूनिट, ठीक है। अब आप एक ट्राई करो, हाँ ना, यू ट्राई। सो नाउ विल फाइंड O का कोऑर्डिनेट 0 है और B का कोऑर्डिनेट -3 है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस OB फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड डिस्टेंस OB। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। बेटा बड़ा कौन है, बराबर, हु इज ग्रेटर हियर इन -3 एंड -0। तो वी ऑल नो दैट 0 इज ग्रेटर देन -3। वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है, बराबर है। कोई भी नेगेटिव नंबर से 0 क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आया? तो डिस्टेंस क्या होता है, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट कौन है, तो बिगर कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है, तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है, तो ये माइनस पहले, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है, तो वो -3 है, तो ये -3। तो 0 माइनस ऑफ -3 +3 कितना आया, 3 यूनिट, बराबर है। तो आप हमेशा क्या देख रहे हो, जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस एक रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमेशा जो डिस्टेंस आ रहा है, बराबर, यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर, भले ही दो नेगेटिव के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। तो डिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ कुछ सिनॉप्सिस है वो जान लो कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट आई सेड, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। एंड द डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट is a non-negative real number, बराबर। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ऑलवेज नॉन-नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर तो हम जानते हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, बराबर, चाहे वो नंबर लाइन पर इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ये सबको हम रियल नंबर बोलते हैं, बराबर। ये सबका जो कॉम्बिनेशन है, सेट है, वो रियल नंबर है, ये सुनो। तो जो रियल नंबर, जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी रियल नंबर होगा, पर वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव, इट वोंट बी नेगेटिव एनी टाइम। समझ में आया? इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आई बात समझ में?